Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we're gonna do some other topic as well. So I have picked up intellectual property rights as the second topic. So we had done property law in the first one, right? Source would be NCRT right now for understanding the basics. But over a period of time, we also be going to read BEAR Acts, right? So जैसे today we're gonna start with intellectual property, ठीक है? तो जितने भी बेयर एक्ट है हमारे पेटेंट के या अगर वो ट्रिप्स अग्रीमेंट भी है वो डिजाइन एक्ट भी है, वो फार्मर्स से रिलेटेड एक्ट भी है, राइट, फॉर प्लांट्स वेराइटीज एंड अदर काइंड्स ऑफ एक्ट्स, एवरीथिंग वी गोना रीड इट, राइट, इवन कॉपीराइट एक्ट 1957 वी गोना रीड इट वाया बेयर एक्ट, राइट। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है बेयर एक्ट पढ़ने में कि व्हाट एग्जैक्टली exactly, क्या लैंग्वेज है उसकी। अगेन लैंग्वेज तो होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी उसमें, but again we're going to simplify it in the upcoming session. So whatever sessions that I'm taking right now, they're pretty basic. So they are pertaining to your class 10th or 12th CBSE वाला content. They're pertaining to law entrance exam वाला भी, ठीक है। क्लैट तो pretty basic. Again कोई पैसेज आ जाए तो बहुत easy हो जाएगा अगर हम ये टॉपिक कर लें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला, ठीक है। तो हमें कोई आगे चलकर कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो आई एम गोना पिक दिस अप नाउ, right? So I hope you're able to see my screen. Yeah. So we have intellectual property law right now. So let's see the meaning without wasting any time. Intellectual property is an intangible property. क्यों? क्योंकि हम इसको touch नहीं कर सकते because you have prepared things by your brain, by the skills that you have, right? For example, I have created something. I've created something which is, let's suppose, artwork है कोई, right? Artwork I have created because of my own skills, right? I haven't copied it from someone. I have created it with my own skills. So वो artwork है, वो artistic work है। अगर वो work की definition में आता है copyright में, तो definitely उसे protection मिलेगी, ठीक है। और उसमें ऑफकोर्स लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इंटेंजिबल में हम उसको टच नहीं कर सकते, टैंजिबल में टच कर सकते हैं, राइट। हालांकि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में ऐसी बोल रही हूँ, शुरुआत में इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, बाद में वो टैंजिबल कन्वर्ट हो जाती है, राइट। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इज जस्ट योर ब्रेन, right? That is over here also it's written human intellect that comes into existence through human intellect. It refers to the creation of mind or products of human intellect such as inventions, designs, artistic works, names, symbols, images, etc. ठीक है। तो upcoming, right, in the upcoming passages we're going to read about it as well. Intellectual property, IPR, refers to the bundle of those rights which is conferred by law on the creator owner of the intellectual property. These rights are the rights which are given to persons over the creation of their minds, and they usually give the creator an exclusive right over the use of such creation for a certain period of time. Right? Certain period of time ऐसे क्यों बोल रही हूँ? Because copyright और patent, right? Copyright में मानो किसी बंदे ने कुछ बनाया, कोई आर्टिस्टिक वर्क बनाया, ठीक है। उस आर्टिस्टिक वर्क को पर्टिकुलरली 60 years तक प्रोटेक्शन मिलेगी कॉपीराइट में। कोई इनोवेशन करी, कोई साइंटिफिक इनोवेशन करी, उस केस में उसको बोलते हैं पेटेंट, राइट। और उसमें आपको 20 years का मिलता है, ठीक है, प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो गया एंड एक्सक्लूसिव राइट हो गया, राइट। अब एक्सक्लूसिव राइट क्यों बोल रही हूँ, विल सी। They seek to protect the interest of the creators by rewarding the mental labor, allowing them to retain the property rights. Creators, inventors are thus allowed to benefit from such creations. The main reason for granting these rights is to encourage inventions and creations that promotes social, economic, scientific, and cultural development of society. Development होना चाहिए society में, इतना irrelevant नहीं है। अब intellectual property divided into two categories, copyright and industrial property. Okay. तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में देखते हो तो आपके पास पेटेंट्स आते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स आते हैं, जोग्राफिक इंडिकेशंस आते हैं। यू गोना रीड अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट एवरीथिंग, राइट। ओके। कॉपीराइट में यू गोना सी literary, artistic works, novels, poems, plays, films, musical works, right? Artistic works में drawings, paintings, photographs, sculptures, and architectural designs, right? Everything we're gonna see, okay, in the upcoming passages, right? तो जैसे पेटेंट बात करें, पेटेंट इज व्हाट? पेटेंट इज अ साइंटिफिक इनोवेशन. Trademark is what? Trademark is basically something like, let's suppose I say Tesla, Mama. All these are what? These are those brands which have established their name and they're considered as companies now, right? They need protection. आज मामा अर्थ का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने उसका कॉपी कर लिया, ठीक है, सेम नाम से बनाया, तो ऑफ कोर्स व्हाट इज दैट, लोगों को तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा जो मामा अर्थ का प्रोडक्ट है कौन सा असली है, राइट, मेरा वाला है या फिर जो ऑफकोर्स जो कंपनी ने बनाया है वो वाला है। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इमेज देता है सोसाइटी में। इंडस्ट्रियल डिजाइन, इन डिजाइन में बेसिकली फॉर एग्जांपल कोका कोला बॉटल है,
उसका जो कैप है, उसका पर्टिकुलर डिजाइन, राइट, कोका कोला बॉटल का डिजाइन। तो उस केस में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस या फिर जीआई, इस पर पर्टिकुलरली हम जीआई टैग्स के बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअली में उन चीजों को दी जाती है जो हमें दिखाना होता है, उनकी भी कुछ इमेज है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ज्योग्राफिकल टैग है, जैसे ज्योग्राफी होता है ना, प्लेस से रिलेटेड होता है पूरा ज्योग्राफी, जियो का मतलब ही, राइट। तो वहां के केस में फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, टी, दार्जिलिंग टी, मैंने दार्जिलिंग टी बोला क्योंकि दार्जिलिंग से आती है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल से आती है। तो इसके केस में यहाँ पर हमें उसका प्रोडक्ट का नाम भी पता चल रहा है, राइट। वो प्रोडक्ट तो है ही टी, लेकिन वो अपनी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता रहा है, जो उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, राइट। तो उस केस में उसको जीआई टैग मिल गया, ठीक है। कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हम देखते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली हम कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में देखने वाले हैं इधर, ठीक है। पेरिस कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, बर्न कन्वेंशन ऑन आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क्स, गोना सी यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, लास्ट में वीपो, ठीक है। ये चार चीजें हैं, बहुत बेसिक सिंपल है। ये ट्रीटी अडॉप्ट हुई थी 1883 में, वेरी फर्स्ट वन, राइट। फर्स्ट में है 1884 में, नेशनल ट्रीटमेंट इन फ्रेमवर्क ऑफ प्रायोरिटी। अगर हम देखें नेशनल ट्रीटमेंट में, principle of national treatment requires each member country of the Paris Convention to provide equal legal protection for the inventions of nationals from other member countries as it would for its own nationals, right? अब इसमें क्या होता है, what is exactly we are doing is something that, for example, there are around 50 group of countries, right? 50 countries are there and all these countries have signed Paris Convention. क्या होगा, अब मान लो कंट्री, उसमें बहुत सारी कंट्रीज है, ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया 50 तक, ठीक है। तो कॉस्ट जेड पर खत्म हो जाता है, बट अगेन फॉर्म्स इमेजिनरी लेटर्स, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, राइट, एंड ऑल सो ऑन। सो फॉर एग्जाम्पल ए ने कुछ इन्वेंट करा, राइट, तो उसका कॉपीराइट या फिर उसका जो पेटेंट का प्रोटेक्शन है, वो बी कंट्री में भी मिलेगा उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेड सम मेडिसिन विच क्योर्स कैंसर, okay, and nobody has done that in the world, and I'm the only one who has prepared that medicine. So in that case, if I have got, let's suppose, patent protection in my own country A, so in that case, the same patent protection simultaneously I'm going to get in B, C, D, and so on in all the countries. तो नेशनल ट्रीटमेंट है, उसको भी अपने नेशन की तरह ट्रीट करा जाएगा, बी सी डी एंड ऑल। उसके बाद फ्रेमवर्क ऑफ प्रायोरिटी, it also upholds the principle of priority framework, allowing an inventor to protect their invention simultaneously in various countries. So it's the same thing. ओके, तो दो चीजें इसमें याद रखनी है, नेशनल ट्रीटमेंट एंड प्रायोरिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ पर भी सेम नेशनल ट्रीटमेंट में आता है, सेम नेशनल ट्रीटमेंट में सेम लीगल प्रोटेक्शन करेगा। मान लो यहाँ पर आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क है, बर्न कन्वेंशन, ठीक है। मैंने कोई पर्टिकुलर पेंटिंग बनाई, राइट, आई हैव मेड समथिंग, लेट्स सपोज आई हैव रिकॉर्डेड समथिंग। So in that case, particular recording which is completely new, which no one in the world has recorded, of course, if I'm living in country A and if country B has given assent to this particular treaty, then of course the same would be applicable in B also, the same protection. Automatic protection, mandated legal protection should not be subject to apply compliance with any formalities. It means कि अगर for example ये सब चीजें automatically होंगी, अगर A में if I have recorded something and B में उसका मेरे को protection मिल रहा है, so in that case I don't have to go through the legal complexity. There won't be papers that I need to sign of countries belonging to countries B, C, D, E simultaneously. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एक बार ऑटोमेटिकली एक साथ ही सारी चीजें होती हैं। Independence of protection decreed that the legal protection should be independent of the existence of the protection in the country of the origin. It's very similar to all the principles that we have studied, be it be priority principle, be it be national treatment. सेम ही चीज है कि जो आपको प्रोटेक्शन अपनी कंट्री में मिल रही है, वो बाकी सारी कंट्रीज में आपको मिलेंगी, उन कंट्रीज में जिन्होंने ट्रीटी साइन करी है। अब आते हैं यूसीसी, विच इज नॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड, विच इज यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। अब it adheres to the principle of national treatment rather than automatic protection, which implies that the contracting parties are not obligated to provide foreign works with automatic protection if the national requirements are not. We have two things in it. We also have national treatment, we have automatic protection. अगर national treatment fulfill हुई, तभी आपकी automatic protection fill up होगी, ठीक है, ये क्राइटेरिया चेक होगा। तो दो क्राइटेरिया है यहाँ पर, कि जो आपका नेशनल ट्रीटमेंट है कि सब कंट्रीज में इसको सिमिलर माना जाए, राइट। जब ये सिमिलर माना जाएगा हर कंट्री में इसको, तो दैट केस ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। Term of the work. Scientific works are eligible for protection. To provide reasonable notice for the copyright, a copyright notice should accompany the work. UCC stipulates that the protection of the work lasts for the duration of the author's lifetime, duration of 25 years. तो भाई ऑथर के 25 years मरने के बाद भी you are gonna get protection UCC में, ठीक है। Minimum rights. Must provide a set of minimum rights to the lawful owner, which provided do not conflict or do not create any conflict with the spirit of convention. भाई बहुत सारे राइट्स होते हैं, वी गोना रीड अबाउट इकोनॉमिक राइट्स, मॉरल राइट्स, राइट टू अडेप्टेशन, राइट टू ट्रांसलेट, राइट टू रिप्रोड्यूस, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट, राइट टू रिट्रैक्शन, एवरीथिंग।
अब आता है वीपो। तो वीपो कन्वेंशन प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, 1967 स्टॉकहोम में है। वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये लीगल प्रोटेक्शन प्रमोट करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन बिटवीन द ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूनियंस क्रिएटेड बाय द ट्रीटीज व्हिच आर एडमिनिस्टर्ड बाय वाइपो। सो अगेन, लीगल प्रोटेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन, सेम चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ऊपर के याद रख लो चीजें, विच इज नेशनल ट्रीटमेंट, framework of priority, national treatment, automatic protection, independence of protection, national treatment, some kind of minimum rights and term of the work। ठीक है, अब आते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। वो थ्योरी है, उसको जल्दी से हम गिविंग अ रीड। ओके, with the establishment of WTO, importance and the role of intellectual property protection was crystallized in the TRIPS agreement। ये भी पढ़ेंगे, बेयर एक्ट। ठीक है, negotiated at the end of the Uruguay around at GATT treaty 1984। क्लैट वाले जीके में आएगा है सब कुछ। ठीक है, वाइपो के बारे में पता होना चाहिए, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में आ सकता है एटलीस्ट शुरू के राउंड से मेरे मतलब आते हैं मॉक्स में। द ट्रिप्स अग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट 1 जनवरी 1995, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वन। गैट से आया था ये। ठीक है, encompasses various things: intellectual property, harmonizing, strengthening the standards of protection and providing effective enforcement of this। इंडिया सिग्नेटरी है इस पर्टिकुलर का। इंडिया ने इस सिग्नेटरी की वजह से इतने सारे राइट्स, इतने सारे एक्ट्स पास करे। प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट 2001, पोटैटो वाला केस अगर आपने सुना हो, विल रीड अबाउट इट। ठीक है, देन जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। 1911 में इंडियन पेटेंट डिजाइन एक्ट गवर्निंग पेटेंट्स, पेटेंट एक्ट 1970 came into force in 1972। amended consolidated act went through an amendment in 2005 to be in compliance with TRIPS agreement and is known as the Patents Amendment Act of 2005। ठीक है, patent was extended to all the things: food, drugs, microorganisms and even chemicals as well। ठीक है, तो ये चीजों में अब हमारा पेटेंट एक्ट है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं मेजर टॉपिक। फर्स्ट, कॉपीराइट। Copyright is a right which is given by law to creators of literary, dramatic, musical, artistic works and producers of cinematographic films and sound recordings। It's a bundle of rights including the rights of reproduction, communication to the public, adaptation, translation। We're going to read about these individually in detail। The protection is automatic and does not depend on registration, but usually registration करा देना चाहिए ताकि कभी dispute हो तो फिर दिक्कत ना आए। ठीक है, एविडेंस हाथों में हो। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसके बारे में बात करूं कॉपीराइट के बारे में, कॉपीराइट इज यूजुअली जब मैंने चीजें क्रिएट कर दी, राइट, आर्टिस्टिक वर्क्स क्रिएट कर दी, कोई पेंटिंग ऐसी क्रिएट कर दी जो बहुत स्पेशल है ना, जो किसी ने आज तक बनाई नहीं है, कोई गाना ऐसा रिकॉर्ड कर दिया। यूजुअली गाने हम देखे जाते हैं, गाने रिकॉर्ड करते हैं एंड वो किसी ने रिकॉर्ड नहीं करा होता, उसको चुरा नहीं सकते बिकॉज उसमें प्रोटेक्शन दी हुई है। ठीक है, स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन इन कॉपीराइट। Okay. It is to get protection of copyright as work must be original. Mere ideas, knowledge, concepts, they are not copyrightable. Having said that, copyright protects the original expression of information ideas. Copyright can be claimed by either the creator or a person who's inherited the rights of ownership from the original or an agent who is allowed to act on the behalf of creator. Okay. रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो भी वर्क्स बनाए हैं करंटली उनकी फैमिली के पास उन पर्टिकुलर वर्क्स का कॉपीराइट है। ठीक है, क्योंकि फैमिली ने वो वर्क इनहेरिट करा है, तो इनहेरिट वाला टिक हो गया। मेरे आइडियाज, मेरे पास एक सिंपल आइडिया है जो मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा, ठीक है, तो वो आइडिया ऑफकोर्स कॉपीराइट नहीं कर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आइडिया है कि मेरे को एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल डिजाइन बनवाना है। ठीक है, वो सिर्फ आइडिया है, वो सिर्फ मेरे पास आइडिया है और मैंने इसको नहीं करा, मटीरियलाइज नहीं करा, तो उसके केस में तो ऑफ कोर्स वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन मान ही नहीं सकते हो उसको। ठीक है, मेरे पास आइडिया है, मानो किसी ने वो सेम आइडिया यूज करके कुछ बना दिया, वही सेम आर्किटेक्चरल डिजाइन बना दिया। ठीक है, मैंने सोचा ये तो मेरा आइडिया, इससे कॉपी कर लिया। नहीं, मैं केस नहीं कर सकती क्योंकि वो सिर्फ मेरा मेयर आइडिया था। ठीक है, अब आते हैं वर्क। वर्क आपका सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डिफाइंस द टर्म वर्क। प्रोटेक्टेड वर्क्स क्या है? लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, सिनेमेटोग्राफिक एंड साउंड रिकॉर्डिंग। ओके, व्हेन इज द वर्क प्रोटेक्टेड? अगर वो वर्क की डेफिनेशन में फॉल कर जाए। वर्क मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मटेरियल फॉर्म, मैंने बताया टैंजिबल मटेरियल फॉर्म, इनटैंजिबल दिमाग नहीं चलेगा। वर्क मस्ट बी ओरिजिनल, कॉपी करा हुआ नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इज नेसेसरी टू रजिस्टर, हमने पढ़ा रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स ऑटोमेटिक, डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मेलिटी।
and entries were service prima facie evidence in the court of law with respect to dispute. कंप्लीट पे डिस्प्यूट है तो रजिस्ट्रेशन वाला जो डॉक है वो काम कर जाता है. प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन. Work is created, no formality is required, and the facilities exist for having the work registered in the registrar of copyright. ठीक है. रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट तो करो ना करो यूजुअली कर दो. अच्छा, टर्म ऑफ कॉपीराइट. इन परपेचुइटी मतलब हमेशा के लिए. हमेशा के लिए नहीं होता, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. समझते हैं इसका टर्म क्या है. द जनरल रूल इज दैट द कॉपीराइट लास्ट फॉर 60 years. ठीक है, 60. In the case of original literary, dramatic, musical, artistic work, 60-year period is counted from the year the death of the author. In the case of the cinematographic and sound recordings, photographs, posthumous publications, anonymous and pseudonymous publications. Pseudonymous मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम बकुल. ठीक है, माई ओरिजिनल नेम इज बकुल, राइट, बट आई एम लिविंग इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, where females are not allowed to educate themselves, right? Females are allowed to confine themselves within the household. They're not allowed to write, right? For example, I want to be a writer, and I have that urge to become a writer. I write something, okay? I write a very good story, right, which nobody else has written, and that story is really intriguing. Someone finds that story, but I have written it under the name of, let's suppose, ललिता बाई. ओके, तो वो ललिता बाई क्या हो जाएगा, सुडोनिमस हो जाएगा, क्योंकि असली नाम तो बकुल है. अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए, आई यूज सम नेम दैट इज ललिता बाई. ललिता बाई इज गोइंग बी सुडोनिमस. जो भी पब्लिकेशन लिखे जाएंगे विद द नेम ऑफ ललिता बाई, दैट बी सुडोनिमस. वर्क ऑफ इंटरनेशनल, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन. इधर आ जाओ. ये जो चार है ना, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, यहाँ पर ऑथर की लाइफ हो गई. ऑथर की लाइफ के साथ 60+ years. ये जो है यहाँ पर 60 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन. प्रोटेक्शन समझ में आया. राइट्स. राइट्स पढ़े. दो तरीके के हैं. इकोनॉमिक राइट्स. इकोनॉमिक राइट्स वो होते हैं जहां से ओनर फाइनेंशियल रिवॉर्ड ड्रॉ करता है फ्रॉम द यूज ऑफ द वर्क्स बाय अदर्स. विद इन दिस कैटेगरी वी हैव राइट टू रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, कम्युनिकेट, adaptation, ट्रांसलेट. एक मॉरल राइट्स भी होता है. मॉरल राइट्स would stand a step ahead of economic rights. Moral rights are personal ties between an author and a work. They afford control over the creation and protect against modification, alteration, preserving the worker's integrity. Okay. जैसे paternity, to claim, prevent others to claim the ownership of copyrighted material. Reputation रखने के लिए और एक्सप्लोटेशन से बचाने के लिए हम इंटेग्रिटी वाला प्रिंसिपल. रिट्रैक्शन मतलब चिप अप, टेकिंग बैक द प्रीवियस असर्शन मेड. मतलब जब कॉपीराइट को वापस ले लेते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन. ऑफ कोर्स ओनर के पास ही होता है, कॉपीराइट कब वापस लेना है, कब देना है, कि कब टाइम तक देना है, ठीक है, कैसे प्रमोट करना है, ये सब ओनर के पास होता है. ठीक है, तो राइट टू रिट्रैक्शन, पेटर्निटी. अब अडेप्टेशन में क्या होता है, कन्वर्जन, ऑल्टरेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रीअरेंजिंग और कॉपीराइटेड वर्क मींस, एंड इट इंक्लूड्स द राइट टू अडेप्टेशन. ठीक है, तो अडेप्टेशन में मेरे को कैसे भी तरीके से मन है, मैं कैसे भी कॉपीराइट को प्रेजेंट कर सकती हूँ. ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दूं, उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर दूं, उसको ट्रांसक्रिप्शन. अगेन, कोई मान लो कॉपीराइट कोई सिंगिंग में है, ठीक है, मैं उसको लिखित फॉर्म में कर दूं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. रीअरेंजिंग तो कॉपीराइटेड मटेरियल 5-6 गाने लगाए हैं 1 2 3 4 में, राइट, उसको 2 3 4 1, तो उसको रीअरेंज भी कर दो तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. ट्रांसलेट, मैं अपना ट्रांसलेट करवा सकती हूँ, मेरा मन है ट्रांसलेट करवाने का तो मैं करवा सकती हूँ. इट शुड बी माई विल बिकॉज आई एम दी ओनर. ट्राई टू कम्युनिकेट में, इट मीन्स लेटिंग और मेकिंग द प्रोडक्ट वर्क अवेलेबल टू द पब्लिक बाय वे ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. डिजिटली करना है, सिमिलकास्टिंग एंड वेबकास्टिंग. तो ब्रॉडकास्टिंग, सिमिलकास्टिंग एंड वेबकास्टिंग कैसे भी कराना. The owner of the copyrighted work also has a right to distribute in the market and make money out of it. Act of distribution may be in the form of sale, lending or for fee, or for free, or for consideration, rental, और free distribution by the way of gift. कैसे भी कर सकते हो, जैसे हमने प्रॉपर्टी लॉ में पढ़ा था, गिफ्ट डीड होता है, एक्सचेंज होता है, सेल होता है, यहाँ पर भी सेम होता है. ठीक है, कॉपीराइट आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है, डिवॉल्व कर सकते हो. Reproduction is an act of copying from the previously finished works and is giving it a differential form by adding, editing, modifying the same. Such rights shall exclusively be exercised by the owner of the work and shall not be infringed by any other person, since the act of reproduction may economically make benefits to the owner.
मेरे को भाई कैसे भी कॉपीराइट करना है, कैसे भी रिप्रोड्यूस करना है, चाहे मैं ऐड करके, एडिट करके, मॉडिफाई करके करूँ, वो मेरी मर्जी है। नोबडी कैन टेक दैट पर्टिकुलर राइट फ्रॉम मी। इस केस को देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केसेस ओवर हियर, राइट। तो अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस बंदे ने क्या करा, आई टेल यू, ही वाज अ रिनाउंड स्कल्प्टर, राइट। इसने म्यूरल क्रिएट करी, म्यूरल दीवारों पर लगती है, ठीक है, फॉर द इंडियन गवर्नमेंट एट विज्ञान भवन, and he spent 5 years creating the work. Displayed 1962 without notification or consent, the Indian government withdrew it. It removed the mural, and the process, right, of removing the mural caused some kind of injury to the mural. ठीक है, म्यूरल का इंजरी हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ, इंटेग्रिटी पर आ जाए, तो उसके मॉरल राइट्स हुए, राइट। हमने मॉरल राइट्स पढ़ा है, हमने इंटेग्रिटी पढ़ा है। Honorable Delhi High Court stated moral rights which define the essence of the work cannot be taken away even if the work is sold. ठीक है, क्योंकि जो बंदा था अमरनाथ सहगल, उसने तो वो काम बेच दिया था ना गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट कुछ भी करे ऐसा नहीं होता, लिखा है। डिस्ट्रॉइंग और ऑल्टरिंग द वर्क वाज डीम्ड अ वायलेशन ऑफ ऑथर्स मॉरल राइट्स। सिंपल। ठीक है। एक है वाई, इसके पहले ना, वाई से प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, ये मैं आपको केस बता देती हूँ, ठीक है। ईस्टर्न बुक कंपनी एंड अदर्स, वीडीबी, मोदक वो एंड अनदर, ठीक है। तो दिस इज द केस, so दिस इज वर्सेस, राइट। कभी कभार किसी को कंफ्यूजन हो, दिस इज वर्सेस, यू नॉट राइट बीएस, यू राइट बी। ईस्टर्न बुक कंपनी एंड अदर्स वर्सेस डीबी मोदक एंड अनदर। ठीक है, इसमें भी आपकी चीज हुई थी, एग्जैक्टली exactly क्या हुआ था, दो लोग थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे, जैसे ये होता है ना, ये ये पर्टिकुलर चीज होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका केस नंबर एंड ऑल लिखा होता है, ये आपका ईयर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका केस नंबर लिखा हुआ है। अब ये होता है कि कौन रिकॉर्ड कर रहा है। अब यहाँ पर आपको एससी भी दिखेगा, ठीक है, ठीक है, कहीं पर आपको यहाँ पर एससीसी भी मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वो आई वुड से these kinds of committees are there which basically look after recording the Supreme Court judges, right? Supreme Court judgments, कोई भी जजमेंट आया, प्रीसेंट आया, आई वांट टू रिकॉर्ड इट, राइट। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि यार कौन से ईयर में हुआ है, कौन सा नंबर था 809। और एससी का मतलब वो पर्टिकुलर कमिटी है, राइट। एससी, एससी, एससीसी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमिटीज हैं, ठीक है। दिस इज एससीसी, ठीक है, जो रिकॉर्ड करती है। और बहुत सारे कमिटीज होती है जो रिकॉर्ड करती रहती है जजमेंट्स को, लोगों की सिंप्लीफिकेशन के लिए, लोगों को समझ में आए, ठीक है। अब आता है एक्सटेंट ऑफ ओरिजिनलिटी, एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ था, बात करें तो ईस्टर्न बुक कंपनी थी। याद रखना, जब भी हम कोई केस लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये केस होता है, पहला वाला पिटिशनर होता है और दूसरा वाला होता है डिफेंडेंट, ठीक है। डिफेंडेंट मतलब जिससे क्राइम कमिट करा होता है, पिटिशनर जो केस फाइल करा होता है, जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, ठीक है। तो अमरनाथ सहगल ऑफ कोर्स अग्रीव्ड पार्टी थी, बिकॉज उसकी राइट्स पर आंच आई थी। ईस्टर्न बुक कंपनी ने केस फाइल करा था इधर, और जो डीबी मोदक एंड अनदर था, इसने क्राइम कमिट करा था, एलिजेड क्राइम कमिट करा था, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था। ईस्टर्न बुक कंपनी एक पर्टिकुलर क्या लिखती है, जजमेंट्स लिखती है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, उसको सिंप्लीफाई करती है ईस्टर्न बुक कंपनी। अब क्या हुआ, मान लो कि मैंने ना एक पर्टिकुलर जजमेंट उठाया, ठीक है। लेट्स सपोज आई हैव पिक्ड अप शीला बारसे वर्सेस द चिल्ड्रंस एड सोसाइटी, कोई भी रैंडम जजमेंट मैंने उठा लिया, ठीक है। एंड अगेन अपकमिंग सेशंस में हम इस जजमेंट को डिस्कस भी करेंगे, क्या था। इफ यू ऑल नो अबाउट दिस जजमेंट, सो यू मे एक्चुअली पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट इज इट्स एक्चुअली अबाउट, and what was the major thing or the major principle that came out of this judgment. Free to drop this in the comment section below. Okay, so अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। ये पर्टिकुलर केस था, इस केस में जो भी हुआ, ईस्टर्न बुक कंपनी ने वो लिस्ट डाउन कर दिया और उसको पब्लिश कर दिया। डीबी मोदक एंड नदर ने वही सेम केस उठाया, और जो केस ऑलरेडी ईस्टर्न बुक कंपनी ने लिखा था, अब उसने क्या करा, आई शैल टेल यू। यहाँ पर मेंशन है, they segregated the existing paragraphs in the original text by breaking them into separate paragraphs. They added internal paragraph numbering, right, within the judgment after providing uniform paragraph numbering into multiple judgments, indicating the judgment of the judges who have dissented or concurred by introducing the phrases like concurring, partly dissenting, supplementing, majority expressing no opinion, etc. ठीक है। तो एक्चुअली में उन्होंने क्या करा, वो जजमेंट उठाया और उस पर्टिकुलर जजमेंट में ना मॉडिफिकेशन कर दी। इतने मॉडिफिकेशन नहीं करे, एक्स्ट्रा चीजें, लाइक फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा जजमेंट आता है, उसके बीच में उन्होंने कॉमा लगा दिया, ठीक है, मेजर लाइंस के बीच में। उन्होंने क्या करा, मेजर लाइंस सी, फॉर एग्जाम्पल किसी जज ने कुछ बोला है तो उसको अंडरलाइन कर दिया, उसको लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया। ये लिख दिया कि यार 9 जज बेंच थी, तो 9 जज बेंच में 4 क्या कर रहे थे, आपके डिसेंट दे रहे थे, और जो 5 थे वो कॉन्कर कर रहे थे,
जजमेंट से। तो उन्होंने ये सब कुछ मेंशन कर दिया, ये सारे वर्ड्स वगैरह मेंशन कर दिए, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। द टास्क ऑफ पैराग्राफ नंबरिंग एंड इंटरनल referencing requires skill and judgment in the great measure. Editor who inserts para numbering must know how legal argumentation and legal discourse is conducted and how the judgment of the court of law must read. In these inputs put in by the appellants मतलब जिसने अपील करा, appellants, petitioner, है ना, victim, है ना, या फिर aggrieved party, ये सब सेम होता है। Reported in the SCC, again ये कमिटी है, ठीक है। Appellants have a copyright and nobody is permitted to utilize the same। दोनों का सेपरेट है। ईस्टर्न बुक कंपनी ने जो करा, उनका लिखने का तरीका सेपरेट है पिटिशनर का। जो डिफेंडेंट ने पिटिशनर के साथ करा, उनका तरीका डिफरेंट है, उन्होंने कुछ कॉपी नहीं करा, ठीक है। अगर आप वर्ड ऐसे डाल रहे हो, कॉन्करिंग, डिसेंटिंग, या फिर आप वो डाल रहे हो, आप लेट्स सपोज कॉमास वगैरह डाल रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम चीज है। आपके पास लीगल आर्ग्यूमेंटेशन होगा, आपके पास वो स्किल होगा वो समझने का, तभी वो अपना स्किल यूज करके आप उन चीजों में थोड़े से मॉडिफिकेशन कर, ताकि वो चीजें सिंपल हो जाए बाकी पब्लिक के लिए, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो इसमें डिफेंडेंट को डांट नहीं पड़ी कोर्ट से। कोर्ट ने बोल दिया कि जो डिफेंडेंट ने करा है वो भी कॉपीराइट है उसका, ठीक है, उससे तुम्हारा कॉपी नहीं करा है। ओके। Okay, why is this protection required in modern society? Modern society, it is to provide to the creators software, music, art. It helps in creating. The creators are fairly compensated for their work. Work is not used or copied without permission. Copyright also promotes creativity, innovation by giving creators the exclusive right to control. ठीक है, and it is in stopping plagiarism. प्लेजरिज्म होता है कि जब आप नेट से डायरेक्टली कुछ चीजें कॉपी पेस्ट कर देते हो, उसको प्लेजरिज्म बोलते हैं। Copyright plays a role in stopping plagiarism or by providing legal protection for original works and giving the creators exclusive rights to control the use and distribution of their work. Fairly compensated, can be found guilty for infringement, fines जैसे भी लगता है। It's important to note all instances are not all, ये line ध्यान वाली है, just underline this one. I'm highlighting this with a blue highlighter. Okay, not all instances of plagiarism are necessarily copyright protection, as copyright law only applies to original works that are fixed in tangible form, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पर भी क्यों हो जाना चाहिए प्लेजरिज्म का, ठीक है, केस। क्यों? क्योंकि मैंने तो बाहर का कंटेंट उठाया है पढ़ाने के लिए, है ना, बात है। अब इसलिए तो बोला है नॉट ऑल इंस्टेंसेस, बहुत चीजें कवर्ड होती हैं, राइट। For example, for education purposes or for other purposes. Specifically, I'm talking about with respect to educational purposes. If I'm accessing to anything, let's suppose, and that too, the main purpose is education only. So in that case, nobody's gonna file case against me just for plagiarism. Okay, so it's something that is allowed educational purposes के लिए, ठीक है। ओके, ओनली अप्लाइज टू ओरिजिनल वर्क्स फिक्स्ड इन टैंजिबल फॉर्म। अगेन हमने डिस्कस बहुत अच्छे से करा था कि आइडियाज एंड ऑल क्या होता है। अब हम आ जाते हैं पेटेंट, ठीक है। पेटेंट भी बहुत सिंपल छोटा सा टॉपिक है। Patent is a legal document which is issued by the government to the inventor. The patent grants an inventor absolute and exclusive ownership right over the invention, freedom to use and sell the invention for a stipulated time period. It is a statutory right for an invention granted for a limited period of time to the patentee by the government. Patentee मतलब जिसका product है, जिसको patent करवाना है, in exchange for full disclosure of his invention or for excluding others from making, using, selling, or importing the patented product or process for producing the product or for those purposes without his consent. For कोई भी मेडिसिन है, कैंसर से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन है, ठीक है, और मैं इंडियन गवर्नमेंट के पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि आप इसको ले लीजिए, इसको पेटेंट दे दीजिए ताकि कोई इसको कॉपी ना करे, ठीक है, कैंसर का मेडिसिन है ये, ठीक है। अब मेरे को फुल अपनी इन्वेंशन बतानी पड़ेगी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट बॉडीज को कि मैंने इस मटेरियल को बनाने के लिए क्या क्या यूज करा है। मैंने इस मटेरियल को बनाने के लिए ये पर्टिकुलर हर्ब यूज करी है, जो मैं कहाँ से लाई, हिमालय से लाई हूँ, जो ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है। मेरे को सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट प्रोसेस है, एक दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोडक्ट पेटेंट और एक होता है प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट होता है, अगेन मेडिसिन का एग्जांपल दिया है मैंने, तो मेडिसिन के एग्जांपल में दैट इज ऑफ कोर्स पेटेंट है, वो प्रोडक्ट है मेडिसिन जो कैंसर की है, दैट इज प्रोडक्ट पेटेंट। प्रोसेस पेटेंट होता है कि उस पेटेंट को बनाने में मैंने कौन सा प्रोसेस लगा है, वो प्रोसेस को मेरे को रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं nobody is gonna use 3 mg of medicine A and 2 mg of medicine B,
ठीक है, ऐसा भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस दैट यू आर फॉलोइंग, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं प्रोसेस पेटेंट। वेरी सिंपल थिंग, आई थिंक चैप्टर में इज नॉट देयर। मॉक्स में कभी कभार आ जाता है ना। प्रोस प्रोडक्ट या प्रोसेस पेटेंट, ठीक है। तो प्रोसेस हमें पता है कि आप प्रोसेस को पेटेंट करा रहे हो। मेरा प्रोसेस इनोवेटिव है, कोई इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करने वाला। मैंने 3 mg का मेडिसिन ए लिया, 2 mg का केमिकल बी लिया, उसको मैंने सन में रख दिया। सन के बाद मैंने उसको एक विंडी जगह पे रख दिया, तो भाई ऑफ कोर्स इतना प्रोसेस तो कोई नहीं करेगा ना। टर्म ऑफ पेटेंट 20 years है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। कॉपीराइट 60 years है। बाइफर्केशन बता दिया था, which act governs the patent system 1970 2005 में फाइनली कंसोलिडेट हुआ था जब आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे एड अप कर दिया अपने पेटेंट रूल्स ऑफ 2003। What can be patented? Before getting an idea patented, the inventor must ensure its patentability. थ्री रिक्वायरमेंट्स, नोवेल्टी यार बिल्कुल नया होना चाहिए, उसमें वन या मोर यूनिक या न्यू एलिमेंट्स होने चाहिए, बिल्कुल सेम ना हो किसी से, ठीक है। Non-obviousness, the simple or obvious changes to an existing invention cannot be called an invention. Invention must be a notable change in the field. The particular feature must add to existing technical knowledge, that is in terms of uniqueness and commercial viability. बहुत important. अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या कमर्शियल वायबिलिटी है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब ये है कि वो कमर्शियलाइजेशन मतलब बेचने के योग्य हो, right? That is commercialization. It should have some kind of utility. If you have prepared something which is of no use, then I would say what's the use of selling that or even getting that product patented, right? So it should have some kind of commercialization वाला element as well. Okay. ये तीन चीजें याद रखनी फॉर क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स। दिस कैन कम फॉर मॉक्स। बॉक्स में पैसेजेस में लिखे आती हैं सब चीजें, बट पता होंगी पहले से। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा इफ यू नो दीज थिंग्स एट द बैक ऑफ योर हैंड। एट द बैक ऑफ योर हैंड तो एक्चुअली क्लैट में थॉट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, राइट। आईपीसी भी मैं बहुत कम बोलूंगी, क्योंकि आईपीसी अगर मैं बताऊं तो नॉर्मली मॉक से हो जाता है, बट अगर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा सारे सेक्शंस का तो वहां से भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो वी गोना रीड इट एज आई सेड कि वी गोना पिक अप बेयर एक्ट्स इन द अपकमिंग सेशन एज वेल। वी गोना रीड इट, राइट, अंडरस्टैंड इट कि यार कैसे कैसे सब कुछ चीजें होती हैं, तो हमें क्या होगा उससे ज्यादा थोड़ी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी और थोड़ी एक्सटेंसिव नॉलेज पता चलेगी। अभी वी आर डूइंग जस्ट द बेसिक्स, ठीक है। पर्पस ऑफ पेटेंट लॉज टू encourage साइंटिफिक इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, पर्सन जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स इंडिया में वो है गुरतेज संधू। जस्ट रिमेंबर इट एज एन एमसीक्यू, डोंट गो ऐसे। इज नोन एज इंडियन owning द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स। रीड करने की नीड नहीं है। दिस ब्रीदिंग सेंसर अपैरेटस, ये देख सकते हो, दिस इज, ये मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि बोलो जो आने वाला है। गुरतेज संधू पता हो, वो भी आना बहुत डिफिकल्ट है, बस ये जीके में आ सकता है। Trademark. What is trademark? A mark is a distinguishing symbol which any person can use to exert public attention or create some kind of impression in the minds of the people. The trademark is a brand entity which has a capability to distinguish one's goods and services from another person's goods and services. Trademark includes word, design, logo, shape of goods. Okay, packaging combination. Trademark rights statutorily protected by the Trademark Act of 1999. तो 1999 में क्या, अब देखो फंक्शन देख लो ट्रेडमार्क का, अभी मैं एग्जांपल्स अच्छे अच्छे दूंगी। इट आइडेंटिफाइज द गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। इट गारंटीज द अनचेंज्ड और क्वालिटी, ओरिजिन भी करता है, ठीक है, अनचेंज क्वालिटी। एडवर्टाइजेस गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएट्स एन इमेज फॉर देम। The registered proprietor of a trademark can create, establish, protect goodwill of its products or services. He can stop other traders from unlawfully using the trademark or sue for damages and secure destruction for infringing goods or for labels. Who benefits from trademark? Of course, the registered proprietor. किसका वो particular चीज belong करता है? अगर right टेस्ला है तो Elon Musk is the registered proprietor of Tesla because वो trademark है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब देती हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ग्लू स्टिक की। ग्लू स्टिक है एक, ग्लू स्टिक की कंपनी जो दिमाग में आती हो, फेविस्टिक, ठीक है। फेविस्टिक एक ट्रेडमार्क है, उसने अपनी इमेज स्टैब्लिश करी है सोसाइटी में, उसने उसकी अनचेंज क्वालिटी है, उसने गुड्स को एडवर्टाइज करके रखा है, उसने इमेज बना के रखी हुई है, ठीक है। अगर कोई मान लो फेविस्टिक है, मैं सेम ही ब्रांड का कुछ इंट्रोड्यूस कर दूं, ठीक है, तो सेम ही नेम का कुछ इंट्रोड्यूस कर दूं तो ऑफकोर्स कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा सोसाइटी में, ठीक है। फेविस्टिक असली वाली कौन सी है, ठीक है, तो उसके केस में मैं बोल रही हूँ
ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एक्सेट्रा। ठीक है। तो ट्रेडमार्क हम इसको कंसिडर करते हैं इस केसेस में, ये अगेन पता होना चाहिए। ठीक है। एंड उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ट्रेड नेम देखते हैं, डिफरेंस भी देखते हैं। ठीक है। ट्रेड नेम इज एन ऑफिशियल नेम अंडर विच अ कंपनी ऑपरेट्स एंड इट्स नोन फॉर डूइंग बिजनेस, or name or a assumed name. On the other hand, a trademark is the name, symbol, logo that a business uses to market its goods and services. It's a unique identifier that helps the customers differentiate the products and services of one company from those of others. And both the trade names and trademarks are important elements in playing a critical role in building and protecting the company's reputation identity. Okay. एक पर्टिकुलर कंपनी है मंगलदीप। ठीक है। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है मंगलदीप, ये अगरबत्तियां का काम है। ठीक है। इसका ये बेचती है इंसेंस स्टिक्स, ये टोबैको भी बेचती है साथ साथ। ठीक है। राइट, आई हैव सीन लॉट मेनी थिंग्स, राइट। वहां पर बोलते हैं कि इट्स सेलिंग टोबैको एज वेल, राइट, काइंड ऑफ पान मसाला एज वेल। सो ये क्या है पर्टिकुलर चीज, इस पर्टिकुलर चीज से क्या पता चल रहा है कि मेजर कंपनी तो है मंगलदीप, बट इस कंपनी में बहुत सारी चीजें ऑपरेट हो रही है। मंगलदीप छोड़ो, आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं। आईटीसी क्या क्या है? इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन, टोबैको कॉर्पोरेशन। बट क्या क्या बना रहे हो? मैगी भी बनाते हैं, वो भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है। तो अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए अपना मेन नेम आईटीसी नहीं, मेन नेम आईटीसी नहीं ले रहे, बल्कि वो डिफरेंट चीजों का सहारा दे रहे हैं, सहारा ले रहे हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मामा अर्थ भी है। मामा अर्थ एक ट्रेड मार्क है, ट्रेड नेम कुछ और है। कंपनी मामा अर्थ की, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, बट वो कंपनी एडवर्टाइज करती है डिफरेंट चीजों को। मामा अर्थ के साथ भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वो बेचती है। A trade name does not provide brand name protection on its own, but registering it is a very important step in protecting the name. On the other hand, a trademark provides protection for the brand name, helps to distinguish a company's products and services from those of others, and in many cases, a company's brand name becomes its trademark, such as the example of Google. Registering a trademark offers additional protection and it helps to secure a brand's identity as well. ऑफकोर्स अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर कंपनी ने अपना वो करा रखा है प्रोटेक्शन, आईटीसी ने प्रोटेक्शन करा रखा है, बट आईटीसी ने मैगी का तो नहीं कराया हुआ ना, जो उसके उसमें आती है जुरिस्डिक्शन में, नहीं कराया हुआ ना, सो उसको करवाना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं होता। ठीक है। सो अगर किसी ने मैगी चुरा लिया वर्ड, तो इसका मतलब ये नहीं कि आईटीसी ने अपना प्रोटेक्शन ले रखा है तो मैगी का भी ले रखा होगा, वो सेपरेटली कराना पड़ेगा। अब आते हैं ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट अगेन बहुत अच्छा टॉपिक है। इंडिया में ट्रेड सीक्रेट रखना अलाउड है, कोई आपको नहीं कहेगा कि आपने ट्रेड सीक्रेट क्यों रखा हुआ है। Okay, so we're going to read this. Trade secrets can include a wide range of confidential information that is important for success and survival of business. This information can be in the form of strategies, designs, and client databases, formulas, and programs, etc. Any other confidential information must be kept secret to maintain the competitive edge in the market. As per the landmark decision with the Delhi High Court, I am highlighting this up. You need to remember this case law. दिल्ली हाई कोर्ट का है, बर्लिंगटन होम शॉपिंग प्राइवेट वर्सेस रजनीश चिब्बर। 1995 में देखो केस आया था, ये वाला 35 नंबर। और डीआरजे जो कमिटी है उसका 335 केस जो लिस्ट करा था। In 1995, trade secret is defined as any information with commercial value which is not available in the public and domain and disclosure of which is gonna cause significant harm to the owner. The trade-related aspects TRIPS agreement, जो हम पढ़ेंगे भी from the same year, defines the trade secrets as information which are kept secret. Commercial value, owner of information takes reasonable steps to protect it. There is no separate legislation that provides the protection for trade secrets, but they can be protected under various provisions of different statutes, such as Section 272 of the Indian Contract Act. The Indian courts have also recognized the trade secret protection based on equity principles and common law, remedies for the breach of confidence and the breach of contract. To ensure the protection of trade secret, it is important for business to include restrictive clauses in the service contracts. Okay, and this helps to ensure the confidentiality in the firm's trade secrets and prevents unauthorized disclosure. Okay. For example, you must have seen on Instagram also, on many reels, you must have seen that this guy prepares something. He prepares a burger या फिर छोले भटूरे, कुछ भी मैंने ले लिया। ठीक है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट फूड आइटम। उसने क्या करा, वो बनाता है, उसके पास एक सेपरेट मसाला होता है, स्पेशल मसाला जो उसको बोलता है, सीक्रेट मसाला जो उसको यूज करता है खाने में। अब क्या होता है, हम उससे पूछते हैं कि भैया कौन सा मसाला है ये, तो वो बोलता है कि ये मेरे खुद का मसाला है। ठीक है। वो क्या है, वो ट्रेड सीक्रेट है, वो बताना नहीं चाह रहा है।
और बहुत लोग बोलते हैं कि यार उस मसाले की वजह से छोले भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं, और ऐसे छोले भटूरे फिल्म स्टार्स को भी पसंद है, और ऐसे छोले भटूरे कहीं और नहीं मिलते। तो उसके केस में वो उसका खुद का ट्रेड सीक्रेट है। अगर वो उसको रिवील कर देगा सबको, अगर वो बता देगा पब्लिक को, उसका हो सकता है बिजनेस ठप हो जाए। बिग बिग ब्रांड्स, कॉन्ग्लोमरेट्स, हो सकता है उसका मसाला यूज करने लग जाए, घर में लोग मसाला यूज करने लग जाए, तो उसकी शॉप तो बंद हो जाएगी ना, ठप हो जाएगी। तो उसके केस में तो उसका अगेन क्लोजर हो जाएगा बिजनेस का। ठीक है। तो अगेन यही बात होती है कि ट्रेड सीक्रेट बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्रेड सीक्रेट जरूरी है ये रखो। कभी कभार होता है कि ट्रेड सीक्रेट के मारे, मतलब ट्रेड सीक्रेट की वजह से, बिकॉज ऑफ ट्रेड सीक्रेट, बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन दैट यू गेट बिकॉज ऑफ ट्रेड सीक्रेट, what actually happens is that you start putting those things which are unhealthy for humans, or which are not edible for humans, in at times in those products or in those mixtures which you call as trade secrets, so that again nobody would come to know about it, and people would get that kind of addiction because of the food. I remember once that I was watching one of the very short stories, and over there, people got addicted to the samosas that a dhaba wala used to sell. अब क्या हुआ था, in those samosas he used to put a secret masala, and secret masala में भी he used to put something which would addict that person to those samosas, some kind of medicine herb he was putting. उसमें क्या होता है again, वो चीज भी अच्छी नहीं है। कंपनीज क्या करें, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस ऐड करते हैं। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस में क्या होता है कि वी गोना ट्रेड टुगेदर, वी गोना एक्सचेंज बिजनेस टुगेदर, बट आई एम नॉट गोना रिवील माई ट्रेड सीक्रेट। ठीक है, ताकि हमारा बिजनेस चलता रहे अच्छे से। ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशन पर आते हैं हम। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, वी गोना रीड इट इन डिटेल, वी गोना अंडरस्टैंड इट इन डिटेल व्हाट एग्जैक्टली इट इज, और कैसे चलता है ये पूरा थिंग। ठीक है। और ऑफ कोर्स ये करेगा ये हमारा हेल्प। ठीक है। इसका सेक्शन भी देखेंगे हम। इसके सेक्शंस हैं एक्चुअली में, ट्रेड सीक्रेट्स के प्रोटेक्टेड हैं 272 में। यू गोना गो, यू इफ यू वांट यू कैन रीड इट, एंड यू कैन आल्सो कमेंट अबाउट इट, राइट, कि इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। अदरवाइज आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आई एम आल्सो गोना मेक अ वीडियो, ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ टू रीड बेयर एक्ट्स एंड ऑल, सो वहां पर हम कवर करेंगे इसको, डोंट वरी, आई शैल कवर इट। Geographical indication is a legal designation that identifies a product or originating from a specific region or geographical location having certain qualities, characteristics, reputation that are unique to that particular place. ठीक है. Its authenticity quality helps the consumers identify the product's origin and reputation. It's a name or sign which is used in certain products which corresponds with geographic origin of the product. Relationship between products and place becomes so well known that any reference to that place is reminiscent of the goods originating there and vice versa. Geographical Indication Act Registration Protection 1999 provides for the registration and better protection of the geographical indication. Example देखो, वारली पेंटिंग। वारली पेंटिंग के बारे में बात करें हम, इट्स ऑफ कोर्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं, वारली, वर्ली पेंटिंग। सो वर्ली पेंटिंग के बारे में बात करें तो इन महाराष्ट्र, गुजरात, दमन एंड दीव। मैं बात करूं कि यार वर्ली पेंटिंग की तरफ करती है, मेरे मन में ऑटोमेटिकली दमन एंड दीव आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज जोग्राफिकल ओरिजिन। जोग्राफिकल ओरिजिन रेफर्स टू स्पेसिफिक जोग्राफिकल टैग, जीआई टैग्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और जोग्राफिकल ओरिजिन जहां से ये आया है is a place, region where the product or item originates. This can include the location where the raw materials are sourced, where raw materials are sourced. One, where production takes place. Two, where a particular process or technique is used. Three, ठीक है, and it can have a specific on impact on quality, reputation, cultural identity of the product, and is often used as a way of distinguishing and promoting products with unique characteristics and qualities. In some cases, geographical origin is also protected by copyright laws such as geographical indications. देखो, अब एक और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, द पर्सन और द एग्जीक्यूशनर, राइट, लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए यूजेस अ रोप। इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोस केसेस व्हिच पर्टेन टू इंडिया ओनली राइट नाउ। Otherwise, I'm I'll mention specifically that which country's case I'm referring, but I'm talking about India only. India में जो execution करने के लिए जो रस्सियां यूज करते हैं, the ropes that we use, the material of those ropes is what? Jute. That jute comes from Buxar. ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसी क्वालिटी का मिलता है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है, ठीक है, जो टाइट रहे। तो भाई ऑफ कोर्स अगर मैं बक्सर का नाम सुनूं तो डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं। अगर मेरे को ऑलरेडी पता है कि यार एग्जीक्यूशनर कहाँ की रोप यूज कर रहा है, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली बक्सर आएगा। थोड़ा नेगेटिव एग्जाम्पल है, बट ठीक है। एग्जाम्पल लिखने को है तो वर्ल्डली दार्जिलिंग टी लिख सकते हो, दो एग्जाम्पल्स। इवन मालाबार, मालाबार पराठा सुना है मैंने, बहुत आता है स्विगी एंड ऑल पर। तो केरला
ऑफकोर्स नाम तो आता है, मालाबार कॉफी बहुत पॉपुलर है केरला कर्नाटका में। व्हाट इज डिजाइन? Design intellectual property refers to original and unique creations of mind that can be used commercially. Designs Act of 2000 is a law operating the protection of designs in India. The law helps the creators earn recognition and financial benefits for their products and also help prevent others from using the creations without permission. Design protects the original and aesthetically unique appearance of the manufactured product as long as it is new and not obvious, only covers the ornamental aspects and does not extend to the functional or structural elements. Any design invented by a person shall be protected by design, shape, color, line, pattern are covered under design. A design may not be eligible for registration if it lacks individual character, is considered offensive, or if its appearance is solely dictated by function. The criteria are used to assess the registrability of the design and ensures that it meets the necessary standards for protection. Design of a wrapper of a biscuit, chocolate, design of a car, design of a shape of a cold drink bottle. सबके examples है यार. Coca-Cola की bottle है. How is it made, right? It is made, you have red colored things on it, you have a red colored cap, it also has some kind of vertical lines on it around the cap. Then you also have a paper there over it where you have Coca-Cola written in white over the red page. Then it covers the bottle around the bottle in a circular manner. And of course ornamental aspects देखता है, वो प्रोडक्ट फंक्शन कैसे कर रहा है वो नहीं देखते हम, ये देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा है दिखने में. बेसिकली ये डिजाइन होता है, उसका शेप, डिजाइन, पैटर्न, एवरीथिंग. कोई ऑफेंसिव हो, ऑफ कोर्स समथिंग व्हिच इज ऑब्सीन, उसको तो हम वैसे भी कुछ जगह तो देते नहीं है. तो ऑफ कोर्स ऑब्सीन हो तो फिर उसको तो डिजाइन में हम मानेंगे ही नहीं. ठीक है. डिजाइन ऑफ अ रैपर, फूड, नाउ यू नो एवरीथिंग. ठीक है. फाइनेंशियल बेनिफिट्स, रिकग्निशन. ठीक है. एंड में कॉपीराइट के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं. प्रोपोनेंट्स ऑफ आईपीआर प्रोवाइड थ्री कॉमनली एक्सेप्टेड रीजंस फॉर सोसाइटी टू ग्रांट सच प्रिविलेजेस. अगर कोई बंदा ऑलरेडी टाइम, मनी, एफर्ट इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको एक्सक्लूसिव राइट्स होने चाहिए और किसी और को बेनिफिट नहीं करना चाहिए. ठीक है. क्रिएटिविटी, इनोवेशन बढ़ती है जब आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स ग्रांट करते हो किसी क्रिएटर को. इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, कंपटीशन बढ़ता है, नई नई चीजें आती हैं, लोगों में competitive एज चालू होता है. And the cost complex task management of IP, IPR is a complex task that requires a combination of functions, strategies aligned with both national laws and national agreements. It can no longer be solely approached from a national perspective. इतने सारे ट्रीटीज देखी है, पेरिस कन्वेंशन देख लिया, बर्न देख लिया, यूसीसी देख लिया, वाइपो देख लिया. तो भाई इंटरनेशनल टैंडम में भी चलते हैं. ठीक है. डिफरेंट एराज में डिफरेंट स्पेयर्स या फिर निशेस में होते हैं ये सब. इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ एक्सेट्रा, हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज रिक्वायर करते हैं. कंसिडरेशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी देखने पड़ते हैं सब चीजों के. ठीक है. एंड द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इंटेंस कॉम्पिटिशन हैव मेड इट नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दिस. ठीक है. एंड गवर्नमेंट हैज लॉज इन प्लेस टू प्रिवेंट सच वायलेशंस एंड इज टेकिंग एक्शन टू इन्फोर्स देम. जो मैंने अलग अलग एक्ट बताए, चाहे वो प्लांट वेराइटीज हो, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, सब एग्जाम्पल्स हैं. राइट. Now I think that we have completed this particular chapter. I hope you must have understood what is copyright and all, what is patent and all. सब कुछ समझ में आया होगा, मैं होप करती हूँ. एंड मॉक्स में हेल्प करेगा जब हम ना अपकमिंग सेशंस में मॉक्स के मैं कुछ क्वेश्चंस लाऊंगी जो पेटेंट कॉपीराइट पे बेस्ड होंगे. हम लोग करने का ट्राई करेंगे कि वो कैसे आते हैं. ठीक है. एज फार एज आई एम एबल टू रिकॉल, क्लैट ने एक बार ही पैसेज दिया था कॉपीराइट पर. एक दो बार ही दिया है. आई थिंक बहुत पुराने पेपर्स हो गए वो 2020 2021 वाले, अभी रिसेंटली तो कुछ दिया ही नहीं है उस पर. हम वही सेम टॉपिक्स आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के. इवन वी कैन स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल. यू जस्ट कॉमेंट मी, राइट, कि आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए ऑन प्रायोरिटी बेसिस. बिकॉज राइट नाउ आई एम पिकिंग ऑन माई प्रायोरिटी बेसिस कि क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ मेजर मेजर टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं. टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में भी करा जा सकता है बिकॉज वो रिलेटिवली बहुत सिंपलर होते हैं. ठीक है. तो अगेन अगर मैं टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करूं, सो आई एम गोइंग टू पिक अप दोज टॉपिक्स आफ्टरवर्ड्स. अदरवाइज आप मेरे को बता दीजिएगा विच ऑल टॉपिक्स टू कंटिन्यू विद. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम इसको बेयर एक्ट से ही पढ़ेंगे. और सबको अब तक तो पता है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं पता, उस पर भी हम एक बेसिक वीडियो बना देंगे. एंड देन हम सबका बेयर एक्ट पढ़ेंगे अब से. अ, जैसे हमारे बेसिक टॉपिक्स खत्म होते हैं हम सबका बेयर एक्ट करना स्टार्ट करेंगे. कॉपीराइट का भी पकड़ेंगे, ट्रिप्स का भी पकड़ेंगे. इतना सब कुछ एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ेंगे बट हम उसको अच्छे से एक्सटेंसिवली देखेंगे.
ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ ही उसमें से देखना है, बट हम कुछ कुछ मेन मेन चीजें देखते रहेंगे, उसको ब्रेक ब्रेक करके पढ़ेंगे, तो इट वुड बी easier फॉर अस, राइट? सो थैंक you so much all those who have watched this video. Do like, share, subscribe and comment as well, and share this amongst all the people who are looking forward to crack CLAT and other law entrance exams, and looking forward to even start the law schools. These particular videos that I am actually posting would help you to kickstart with the law school, because these are all basic ones, so it can give you an edge right in front of everyone. So thank you. Stay tuned. Bye bye.